سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بجلی صارفین کو بھی 14 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ پنجاب اور اسلام آباد کے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو خطوط بھیج دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بجلی کی 5 تقسیم کار کمپنیوں کو خطوط بھیج دیے گئے ہیں۔ سیکرٹری توانائی پنجاب ڈاکٹر نعیم رؤف نے اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی ڈسکوز کو خط بھیجے ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ 14 روپے فی یونٹ کمی کے حکومتی پیکج کی رقم سے آگاہ کیا جائے۔ آئسکو، میپکو، گیپکو، فیسکو، لیسکو 201 سے 500 تک یونٹ استعمال کرنے والے شہریوں کے بجلی بلوں میں کمی کریں گے۔ بجلی کی اصل لاگت اور ریلیف کے درمیان رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ خط کے مطابق ڈسکوز کے تقاضے پر پنجاب حکومت مطلوبہ رقم منتقل کر دے گی۔ پنجاب حکومت نے دیگر صوبائی حکومتوں کو بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا چیلنج دے دیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے پاس بھی عوام کو ریلیف دینے کا اختیار ہے۔ ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ریلیف ملے، سندھ میں بھی یہ ریلیف ملے، بلوچستان میں بھی یہ ریلیف ملے، جس طرح پنجاب میں ریلیف مل رہا ہے۔ پنجاب کی حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ریلیف دیا۔ آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ پنجاب کے جو صارفین ہیں ان کا ایک ماڈل بنا دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے۔ اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے باقی تمام صوبے اس اچھی روایت کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں جتنا پنجاب کے عوام کا دکھ ہے اتنا ہی دکھ دوسرے صوبوں کے عوام کا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے سندھ حکومت سے بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خبر پڑی ٹی وی پر چل رہی تھی کہ پنجاب میں بجلی پر 14 روپے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی ہے۔ تو مریم بی بی کا جو ٹویٹ ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ ہر صوبے کے پاس اپنے بجٹ ہوتے ہیں جو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے اپنی عوام کے لیے۔ تو میں وزیر اعلیٰ سندھ کو ابھی یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بھی کوئی بجٹ مختص کریں عوام کے لیے اس حوالے سے، اور سندھ میں بھی 14 روپے یونٹ کی کمی کی جائے، اور اگر یہ اماؤنٹ ہمیں فیڈریشن کو دینی بھی پڑے، فیڈرل گورنمنٹ کو، تو وہ دی جائے، کیونکہ ایک تو احساس محرومی پیدا ہوگا ہمارے یہاں کے لوگوں میں کہ اگر پنجاب میں یہ 14 روپے کم کیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بجٹ سے کیے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ کو بھی میں یہ درخواست کروں گا خط لکھ کر کہ ہمیں بھی اپنے لوگوں کے لیے یہ ریلیف دینا چاہیے۔ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں 2 دن سے جاری شدید بارشوں کے بعد سکھر شہر کا برا حال ہے اور انتظامیہ پانی کی نکاسی میں ناکام نظر آتی ہے۔ سکھر کے گھنٹہ گھر چوک اور اطراف کے 5 بازاروں میں بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز یاسر فاروقی سے۔ یاسر، لگتا یہ ہے مناظر دیکھ کے کہ سکھر میں زیادہ بارش ہونے سے زیادہ پانی آ گیا ہے جو نکالا نہیں جا رہا ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کا آخری اسپیل تھا، اس نے انتظامیہ کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ میں اس وقت گردوارہ چوک پہ موجود ہوں جہاں پہ تجارتی مراکز ہیں۔ میرا کیمرہ مین اسامہ طلعت اگر آپ کو دکھائے گا کہ میرے عقب میں مقام روڈ ہے، یہاں پہ گاڑیوں کے پارٹس کی دکانیں ہیں اور یہاں پہ کاروبار زندگی مکمل طور پہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے کیونکہ یہاں پہ کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ کیمرہ مین اسامہ طلعت اگر دکھا سکے کہ کئی دکانیں ایسی ہیں جن کے شٹر پانی میں ڈوبے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان دکانوں میں بھی پانی گیا ہے اور ان تاجروں کو جہاں ایک طرف یہ نقصان کرنا پڑا ہے کہ 2 روز سے یہ مارکیٹ نہیں کھلی ہے، وہیں جو چیزیں ہیں وہ بھی خراب ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر دائیں جانب کیمرہ مین پین کرے تو حسینی روڈ ہے، یہ موٹر سائیکلوں کے پارٹس کی جو مارکیٹ ہے اور بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پہ یہ بھی گزشتہ 2 روز سے یہاں پہ بھی کاروبار زندگی جو ہے مکمل طور پہ معطل ہے۔ پوری مارکیٹ اگر آپ دور تک دیکھیں تو بند پڑی ہے۔ چند ایک تاجر ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے اپنی دکانیں کھولی ہیں، لیکن پانی یہاں پہ اتنا کھڑا ہوا ہے کہ گراہک یہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہے گا تاجر برادری یہاں جو یونینز ہیں وہ ان کا کیا کہنا ہے کہ پانی نکالا جا رہا ہے؟ شروع میں جو برسات کے اسپیل تھے ان میں دیکھا گیا کہ پانی بھی نکالا گیا، لیکن جو گزشتہ شام
82 मिलीमीटर का एक स्पेल आया जो कि था, वो काफ़ी बड़ा स्पेल था। उसमें 4 घंटे कंटिन्यू तेज़ बरसात हुई, जबकि दूसरा एक स्पेल रात में शुरू हुआ, वो सुबह 8 बजे तक चला है। उसमें 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई बारिश, जिसके बाद सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि सखर शहर के नशेबी इलाके हों, तजारती मराकिज़ हों या मरकज़ी शाहराएँ हैं, तमाम जो है पानी में डूबी हुई हैं। शहरियों को, ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका यासिर फारूकी, आपने तफसीलन आगाह किया। सखर के शहरी पानी की निकासी में नाकामी पर इंतजामिया पर बरस पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि मेयर सखर और उनकी टीम ने पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। तीन दिन से खड़ा हो गया, कितने बंदे तो यहाँ पे गिर चुके हैं। हमारे सामने ये खड्डा है, म्यूनसिपल ने तो कुछ दिन पहले अपना खुदाई की थी कि यहाँ पे नाला, हमने बोला भी नाला नहीं है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे खुदाई करके चले गए। फिर 3-4 बंदे यहाँ पे गिर चुके हैं सुबह से अभी तक। पानी बहुत है जी, कोई निकालने वाला नहीं है, क्या करें, आवाम तंग हुई पड़ी है। कब से खड़ा है ये पानी? ये पानी कल से खड़ा है जी। अच्छा, आज 2 दिन हो गए। कुछ कम हुआ था या नहीं हुआ, इधर ऐसे का ऐसे ही पानी खड़ा है। मैं आज कुरैशी गोड़ में गया तो यहाँ तक पानी था। ये सिर्फ दावे करते हैं, अमली की इंतजाम इनका ज़ीरो है। ये सखर इंतज़ामिया ने हमको तो जो इन्होंने कहा था कि हम सखर को पेरिस बनाएंगे और ड्रेनेज सिस्टम पे हम इतना खर्चा करेंगे, लेकिन लग रहा है कि इन्होंने हमारे ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने लिए खर्चा किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा साल होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि इंटरनेट स्पीड में इजाफे के लिए 4 नए केबल्स बिछाए जा रहे हैं। इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए, बैंडविड्थ अवेलेबल करने के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जा रही हैं, जिसके अंदर एक SMW6 है, 2 अफ्रीका है जो ट्रांसफर के ज़रिए पाकिस्तान में आएंगी, इसी तरह अफ्रीका 1 है जो PDCL के ज़रिए आएगी, और इसी तरह मकरान गल्फ़ गेटवे है जो कि पाकिस्तान को गल्फ़ से और कराची को गवादर से कनेक्ट करेगी। अगले साल पहले और दूसरे क्वार्टर में इंशाल्लाह 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन कराई जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। मस्तूंग में पहाड़ों पर बारिश के बाद आने वाले रेलों से मकानात, सड़कें और पुल बह गए हैं। मस्तूंग के इलाके किदगाप और शेरजान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। पुल टूटने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। चमन पशीन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और ज़ियारत में तेज़ बारिश, आंधी की वजह से घरों की छतों से सोलर प्लेट्स तक उड़ गई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान 2 रोज से गैर मामूली मौसमी सिस्टम के ज़ेर असर है। पाक अफगान सरहदी इलाकों में तूफानी हवाओं और आंधी ने तबाही मचा रखी है। कई अजला में मूसलाधार बारिश के दौरान क्लाउड बस्ट होने से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। चमन पशीन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी समेत ज़ियारत में तेज आंधी से निज़ाम जिंदगी मफलूज है। घरों की छतों से सोलर प्लेट्स उड़ गयी। सैलाबी रेलों ने बेशतर इलाकों में लातादाद घरों को भी नुकसान पहुँचाया। शीला बाग में तूफानी बारिश से सैलाबी रेले में रेलवे ट्रैक बह गया। कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेनों की आमदरफ भी मुअत्तल है। जिले में तीसरे रोज भी बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। मवासलाती सिस्टम बुरी तरह मुतासिर है। कई इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। सैलाबी रेले में कोहलू सिब्बी शाहरा, बोलान कौमी शाहरा, N40 शाहरा कई मकामात पर बह जाने से कोयटा नोशकी तफ्तान शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर है। तूफानी बारिश के सबब लोरलाई, DG खान और जोब DI खान शाहरा पर भी आमदरफ मुतासिर है। खुशदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मस्तूंग में सैलाबी रेले से 2 राब्ता पुल बह गए। पुल टूटने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, लहड़ी, डेरा बुगटी, औस्ता मोहम्मद और सोहबतपुर में भी बारिशें हो रही हैं। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और पानी घरों और सरकारी इमारतों में दाखिल हो गया है। कराची के इलाके सुरजानी, नॉर्थ कराची और अतराफ में बारिश हुई। सुरजानी में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान। आज शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी तरह सुरजानी टाउन से मुतसिल दीगर इलाके हैं जिनमें नॉर्थ कराची है, गुलशन मेमार है, सेट सुपर हाईवे है, वहाँ पर भी बारिश हुई, जबकि दूसरी जानिब बल्दिया टाउन में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के बाज़ इलाकों में 2 से 3 घंटे तक बारिश हुई है, जिसके असरात दीगर मुतसिल इलाकों पर भी पड़ रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त शहर के तकरीबन तमाम ही इलाकों में मतलब अबर आलूद है। दिन के औकात में कुछ देर के लिए कुछ इलाकों में सूरज जरूर निकला, लेकिन दोबारा बादल छा गए।
महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का इम्कान आज रात तक है, जबकि कल यानी पीर को भी आज के मुकाबले बारिश का इम्कान इंतहाई कम है। जी। साबिक निगरान वफाकी वजीर और एप्टमा रहनुमा गौहर एजाज ने कहा है कि वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क के बिजली सार्फिन से इंसाफ करे। अपने बयान में गौहर एजाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत का 2 माह तक 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ काबिल तहसीन है। गौहर एजाज का ये भी कहना था कि नेपरा के मुताबिक जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपए 3 पैसे रही है। लागत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट होने के बावजूद बिल 40, 60 और 70 रुपए फी यूनिट के क्यों आ रहे हैं? जुलाई में बिजली की पैदावार में 1000 मेगावाट रही, जिसमें से 35% हाइडल बिजली पैदा की गई। बुनियादी मसला उस कैपेसिटी पेमेंट का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। IPPs मुआहदों पर नजरसानी मुमकिन है, उन्हें मुकद्दस गाय ना समझा जाए। इससे पहले कि हर कारोबार बंद हो जाए, IPPs के फैसले कर लिए जाएं। कराची शाहराह फैसल पर वाक़ हॉल में जियो, मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और लाइट स्टोन पब्लिशर्स के इश्तराक से अदब फेस्टिवल सजाया गया है। मुआशरती मसाइल, ख़वातीन क्रिकेटर्स के सफ़र, पाकिस्तानी सियासत पर मबनी किताबों की पज़ीराई जारी है। मज़ीद बता रहे हैं वलीद अहमद। किताबें तारीख़, तमद्दुन और तहज़ीब की हिफाजत करती हैं, आइंदा नस्ल तक अपनी तारीख़ मुंतकिल करती हैं। इसीलिए जियो और मीर खलीलुर रहमान के इश्तराक से इस वक्त एक अदबी फेस्टिवल जारी है जहां किताबों की रनुमाई हो रही है। जो पहली किताब की रनुमाई है वो उमर शाहिद हामिद की किताब है बैटरियल, जिस पर इस वक्त गुफ्तगू जारी है, उस पर बात हो रही है। इस तरह जो दूसरी किताब है जिसकी यहाँ पर तकरीब पजीराई है वो है बियॉन्ड द फील्ड, जो आयशा बाकर ने लिखी है। इस किताब में उन्होंने जो गांव देहात में ख़वातीन होती हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया है। इसी तरह जो तीसरी किताब है वो है अनवीलिंग जज्बा, जो आयुष पुत्रान भारतीय राइटर हैं, उन्होंने इस किताब को तहरीर किया है। जो पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं उनकी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया है। इसी तरह जो चौथी किताब है वो मारूफ ब्यूरोक्रेट हैं सलमान फारूकी, उनकी किताब है जिसको नाम दिया गया है डियर मिस्टर जिना। उसकी भी यहाँ पर तकरीब पजीराई है और इस किताब में उन्होंने जो अपनी जर्नी है 70 साल की ब्यूरोक्रेसी की, उसके बारे में बताया है।